શું રિયલ એસ્ટેટમાં પહેલી વખત કોઈ પણ વ્યક્તિ ઇન્વેસ્ટ કરતું હોય તો એમણે લેન્ડમાં એટલે જમીનમાં ઇન્વેસ્ટ ના કરવું જોઈએ? जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वो चीज का नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज नहीं है तो आपको एक्सपर्ट का सपोर्ट होना चाहिए। શું એ વાત સાચી છે કે કમર્શિयल પ્રોપર્ટી રેસિડેન્શિयल પ્રોપર્ટી કરતા વધારે રિટર્ન આપે? जरूरी ये है कि आप सही टाइम पे कहां पे इन्वेस्ट करते हो। कई बार रेसिडेंशियल भी कमर्शियल से ज्यादा आपको रिटर्न दे सकती है। શું આપણી પ્રોપર્ટીને લાંબા સમય માટે ભાડે આપવી એટલે લોંગ લીઝ માટે આપવી એ સેફ નથી? किसने बोला इट्स सेफ? जब आप कोई एक्सपर्ट के साथ इन्वेस्ट करते हो तो। શું કોઈ પણ પ્રોપર્ટીના માલિક પ્રોપર્ટીને ભાડે આપી દે એના પછી એમના જીવનમાં પ્રોબ્લેમને નોતરે છે? पहले था, अभी रेरा आ गया है तो रेरा से आपको बहुत ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट भी मिलता है, अगेन विद द सपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट। તો આપણે જે શહેરોમાં રહીએ છીએ એ શહેરમાં જ પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરવા જોઈએ પ્રોપર્ટીમાં? इसका मतलब दुबई सिंगापुर में लोग जो इन्वेस्ट करते हैं तो वही रहते हैं क्या? नहीं। इंपॉर्टेंट यह है कि आप इन्वेस्ट करते समय कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखते हैं। માની લો બીજા શહેરોમાં મેં પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરી બી દીધું તો એ પ્રોપર્ટીને હું મેનેજ કઈ રીતે કરી શકું? ये इसका आंसर मैं शॉर्ट में नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। એક વાત કહું, આપનું સ્વાગત છે, મારું નામ છે ગુંજુ ઠક્કર। જેમ જેમ આપણી આવક વધે એમ એમ આપણે શું કરતા હોઈએ છીએ? યાર ઘરનું ઘર હોવું જોઈએ, ઓફિસની ઓફિસ હોવી જોઈએ અને એટલે જ ઘર ખરીદીએ છીએ, પોતાની એક પ્રોપર્ટી ખરીદીએ છીએ અને પછી પણ જો પૈસા બચે છે તો એના પછી એ પ્રોપર્ટીઝમાં આપણે ઇન્વેસ્ટ પણ કરતા હોઈએ છીએ। પણ આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ્યારે આપણે શરૂ કરતા હોઈએ છીએ જર્ની, ત્યારે ઘણી બધી ભૂલો થઈ જતી હોય છે અને એવી ભૂલો, એક વાત કહું ના, એક પણ દર્શકની ના થાય ને એના માટે થઈને એક બહુ જ સ્પેશિયલ વ્યક્તિને આજે તમને મળાવવા લાવ્યો છું। व्यक्ति कौन है? तो सागर लेनवे सर। थैंक यू सो मच सर हमको समय देने के लिए, हमारे सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए, अग्री करने के लिए। सागर सर નું જો ટૂંકમાં ઇન્ટ્રોડક્શન આપું ને તો સર ડિરેક્ટર છે પુણે પ્રોપર્ટી ગાઈડના। એટલું જ નહીં, છેલ્લા 14 વર્ષથી વધુ લાંબા સમયનો સરનો જે એક્સપિરિયન્સ છે રિયલ્ટર તરીકે કે રિયલ એસ્ટેટ કન્સલ્ટન્ટ તરીકે, એમાં 2000 થી વધુ લોકોને પોતાના મનગમતા ઘર અપાવ્યા છે। એટલું જ નહીં, 20,000 થી વધુ લોકોને રિયલ એસ્ટેટમાં નાના મોટા કન્સલ્ટેશન કર્યા છે। ઘણા બધા ડેવલપર્સ સરને સેમિનાર્સ બોલાવે છે જેમાં રિયલ એસ્ટેટમાં કે હોમ ઓનર બાયર્સને એજ્યુકેટ કરી શકે। એટલું જ નહીં, સરે અવોર્ડ વિનિંગ ઓથર બ્રાયન ટ્રેસીની સાથે મળીને અલ્ટિમેટ સિક્રેટ્સ ટુ વેલ્થ બુક પણ લખેલી છે। એટલું જ નહીં, સરની એક યુટ્યુબ ચેનલ છે જેમાં 1 લાખથી વધુ સબસ્ક્રાઇબર્સ છે। એ ચેનલમાં સર રિયલ એસ્ટેટ અવેરનેસ અભિયાન ચલાવે છે અને એમનું એક કેમ્પેન છે લોજિકલ બડબડ। એમાં પુણે શહેરમાં કોઈ પણ નાની મોટી ઘટના હોય, એટલે પોટહોલ હોય કે પછી કોઈ મોટું ડમ્પયાર્ડ પ્લાન કર્યું હોય ત્યાંની ગવર્મેન્ટે, એના પ્રોટેસ્ટમાં સરે એક વખત 5000 બાઇકર્સને ભેગા કર્યા હતા અને એ ડમ્પયાર્ડ હટાવડાયું હતું। એટલે બેસિકલી રિયલ એસ્ટેટમાં સરને નોલેજ છે ને એ નોલેજ આજે આપણે લેવાના છે। તો સર, પહેલો પ્રશ્ન જે હું તમને પૂછવા માંગુ છું ને એ જ છે કે મારે જો રિયલ એસ્ટેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે તો મને કઈ રીતે ખબર પડે કે આ એરિયા અપકમિંગ છે, કે કોઈ પણ અપકમિંગ એરિયાને મારે ઓળખવો કઈ રીતે જોઈએ? अपकमिंग एरिया पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि कौन से एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपका ज्यादा हो रहा है, वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। सेकेंड थिंग, वहां पे जॉब वैकेंसीज जो है वो कहाँ पे ज्यादा जनरेट हो रहा है, वो एरिया में डेवलपमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। डेवलपमेન્ટ हो गया आपका, वहां पे रियल एस्टेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। આ નવું સાંભળ્યું મેં કે જોબ વેકન્સી વધારે હશે ત્યાં આગળ રિયલ એસ્ટેટ વધારે ડેવલપ થઈ રહ્યું છે અને એનાથી રેસિડેન્શિયલ અને કમર્શિયલ પ્રોપર્ટીની માંગ વધારે હશે। તો પછી સર વધારે રિટર્ન મને શેમાં મળે, લેન્ડમાં, કમર્શિયલમાં કે રેસિडेंशियल? एक्चुअली रिटर्न जो है, फ्रैंकली स्पीकिंग हम बात करेंगे तो रिटर्न तो सभी में है। रेसिडेंशियल में भी आपको रिटर्न मिलेगा, कमर्शियल में भी रिटर्न मिलेगा एंड लैंड में भी आपको रिटर्न मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन्वेस्ट कब करते हो, इन्वेस्ट कहाँ पे करते हो एंड इन्वेस्ट के टाइम पे क्या रेट से करते हो, क्योंकि एक मार्केट ट्रेंड रेट रहता है, उससे आप प्रीमियम रेट में करोगे तो डेफिनेटली रिटर्न का है वो डिफरेंट हो जाएगा। वही मार्केट रेट से आप बिलो एवरेज रेट में करोगे तो वहां पे आपको रिटर्न ज्यादा मिल सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप जानोगे कैसे? फॉर दैट पर्पज, इफ आपको नॉलेज नहीं है, आप डेफिनेटली नॉलेज गूगल है, मार्केट ट्रेंड्स है, उसके हेल्प से यू कैन गेट द नॉलेज। आप नॉलेज ले सकते हो, बट वो नहीं है तो आपको एक सही सलाहकार की जरूरत है, एक सही
एक्सपर्ट की जरूरत है जो आपको वो नॉलेज दे और आपका पैसा बढ़ाए. સરે જે સલાહકારની વાત કરી છે એટલે હું કહેવા માંગુ છું કે સર અગ્રી કરી દીધું છે. એક વાત કહું ના દરેક દર્શકોને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ રિયલ એસ્ટેટ કન્સલ્ટિંગ કરવા માટેનું. એટલે સ્ક્રીન ઉપર તમને જે નંબર દેખાય છે એ વોટ્સએપ નંબર ઉપર તમે એક હાય લખીને મોકલી દેશો તો સરની ટીમમાંથી કોઈક વ્યક્તિ તમારા ટચમાં આવશે અને તમે સર સાથે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ કન્સલ્ટેશન લઈ શકશો. આ ફોન નંબર મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ મૂક્યો છે. વોટ્સએપની લિંક સાથે ક્લિક કરશો તો સીધું વોટ્સએપ ખુલી જશે અને તમે મેસેજ કરી શકશો. હવે સર હું એક ફ્રી ઓફ કોસ્ટ કન્સલ્ટેશન લેવા માંગુ છું કે કોઈ પણ પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટેનો બેસ્ટ ટાઈમ કયો હોય? The best time to invest in real estate is a yesterday and second best time is today. यानी एक तो कल आप करोगे तो सबसे बेस्ट टाइम वो रहता है, नहीं तो फिर आज का. ये एक कहावत है एंड दिस इज फैक्ट. क्योंकि क्या होता है रियल एस्टेट में 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज अ टाइम, सेकंड इज अ टाइम एंड थर्ड इज अ अगेन टाइम. वो परफेक्ट टाइम पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रेट अच्छा मिल सकता है, इन्वेंट्री अच्छी मिल सकती है, प्रोजेक्ट अच्छा मिल सकता है या लोकेशन अच्छा मिल सकता है. तो फिर सर टाइम सही है ये कैसे पता लगेगा? कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट आप करोगे तो एक प्रॉपर्टी का साइकिल रहता है. एक इनिशियल साइकिल जिसको हम न्यू लॉन्च बोलते हैं या प्री लॉन्च में बोलते हैं कि जिसमें डेवलपर को जरूरत रहता है इनिशियल लेवल पे. तो वो टाइम पे हमें कैसा है कि वैल्यू भी अच्छा मिलता है, रेट भी डिस्काउंटेड मिल सकता है एंड इन्वेंट्री का चॉइस भी मिलता है. उसके बाद में एक नॉर्मल स्टेज रहता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन बात करते हैं. तो वो टाइम पे एवरेज रेट हमें जो मार्केट ट्रेंड है उस हिसाब से रेट मिल सकता है. एंड लास्ट में रहता है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी या नियरिंग पोजीशन वाला प्रॉपर्टी. उसमें आपको इन्वेंट्री का चॉइस बहुत कम मिलता है एंड बिकॉज ऑफ इनिशियल लेवल पे डेवलपर के पास ऑलरेडी पैसा आ गया है तो लास्ट के जो फ्लैट रहते हैं वो डेवलपर उसका प्रीमियम रेट लेके ही बेचता है. यानी आपको वो जो एप्रिशिएटेड रेट है ना वो डेवलपर ही ले लेता है. सो इंपॉर्टेंट ये है कि आप इफ यू वांट टू इन्वेस्ट एंड आपके पास में ओन कंट्रीब्यूशन कम है तो द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट इज न्यू लॉन्च. बट आंख बंद करके नहीं करना है, विथ एक्सपर्ट एडवाइस. क्योंकि न्यू लॉन्च में भी आप गलत प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा अटक सकता है. सो फॉर दैट यू आपको सही एक्सपर्ट का सलाह लेना इंपॉर्टेंट है कोई भी ऐसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले. હવે સર તમે એવું કીધું કે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન કરતા રેડી પોઝિશનમાં કદાચ આપણે વધારે પૈસા ચૂકવવા પડે, પણ રેડી પોઝિશન પ્રોપર્ટી લઈએ છે તો જીએસટી ચૂકવવું નહીં પડે. તો વધારે ફાયદો શેમાં છે, અંડર કન્સ્ટ્રક્શન લેવામાં કે રેડી પોઝિશન લેવામાં? यस, रेडी पोजीशन में एज पर गवर्नमेंट रूल जो 5% जीएसटी लगता है वो एप्लीकेबल नहीं है. बट प्लीज अंडरस्टैंड क्या रहता है कि अभी मैं पूना के मार्केट का बात करूंगा तो पूना में कैसा है बिकॉज ऑफ आईटी इंडस्ट्री वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है. तो अंडर कंस्ट्रक्शन में ही मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है 80-90% सोल्ड आउट हो जाते हैं. तो हम जब रेडी तक राह देखते हैं, रेडी में आपको इन्वेंट्री नहीं मिलता तो इन्वेंट्री में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. कंपेयर टू अंडर कंस्ट्रक्शन रेडी, ये दोनों का रेट का हम बात करेंगे, जीएसटी आपका 5% डेफिनेटली बचेगा, लेकिन डेवलपर जो है वो रेडी पोजीशन रहेगा तो आपसे 10 से 15% एक्स्ट्रा लेगा ना. तो घुमा फिरा के आपका 10% लॉस हो गया, ऐसा है. तो वो आपको चूज करना है एंड अगेन इट डिपेंड्स आपका मार्केट रिसर्च कितना अच्छा है. क्योंकि वो टाइम पे हमें अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या रेट मिल रहा है, वहां पे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, रेडी में क्या रेट मिल रहा है, वहां पे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, हमको वो कंपेयर करना पड़ेगा और उसमें से बेस्ट कौन सा है वो चूज करके हमें डिसीजन लेना पड़ेगा. यानी इसका ऐसा नहीं है कि हम एक स्ट्रेट अवे आंसर दे सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन आप कौन से लोकेशन पे देख रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन आप क्या बजट में देख रहे हो, कौन से लाइफस्टाइल में आपको समझो रेसिडेंस में लेना है तो कौन से इसमें आपको प्रॉपर्टी लेना है एंड आपको इन्वेंटरी चॉइस एंड प्राइस क्या मिल रहा है. तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है. अब सर તમે જે પુણે સિટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાની વાત કરી કે એમાં અત્યારે આઈટી બૂમના લીધે બધી પ્રોપર્ટીઓ 80-90% તો અંડર કન્સ્ટ્રક્શનમાં જ ખતમ થઈ જાય છે. તો હવે મારે એ જ જાણવું છે કે તમે થોડી વાર પહેલા મને કીધું હતું કે લોકલ સિટીમાંની બહાર બી આપણે ઇન્વેસ્ટ કરી શકીએ, તો કયા શહેરમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ એ કઈ રીતે ખબર પડે? वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए कोई भी आप इन्वेस्टमेंट जब करोगे तो 2-3 चीजें ध्यान में रखो कि वो जो लोकेशन है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है क्या. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है ना कि आपको सारी चीजें कनेक्टिविटी फास्ट मिलेगा, बाकी डेवलपमेंट फास्ट होगा तो वो रेट अप्रिशिएट कर लेता है. ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे जॉब वैकेंसीज बढ़ रही है क्या. यानी मैं अगेन पूना का एग्जांपल दूंगा. पूना में क्या है
कि पूना में, मैं अभी जो पुणे वेस्ट लोकेशन पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे हिंजेवाड़ी करके एरिया है। हिंजेवाड़ी में अभी 3 फेजेस में ऑलरेडी ह्यूज आईटी कंपनीज ऑलरेडी है और आगे 7 फेजेस सैंक्शन है। यानी आप सोच सकते हो कि आगे कितना डेवलपमेंट प्लान में है। तो वहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपको क्या है ना, रेट, क्योंकि जो रेट बढ़ता है वो एक्चुअल पूना के लोग हैं वो रेट नहीं बढ़ाते, जो बाहर से लोग आते हैं ना वो रेट बढ़ाते हैं। तो जैसे पूना में, जैसे मैंने बोला कि आईटी का जो ज़्यादा जहाँ पे कंपनीज है, जॉब वैकेंसीज है, वो आप चेक कर सकते हो, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों चीज़ें। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ पे आपको सोशल सिक्योरिटीज है, यानी कई लोकेशन ऐसे कि वहां पे कैसे चोरी डकैती हो रही है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए लोग नहीं आएंगे। तो आप पैसा भले सस्ते में मिलेगा लेकिन वो रेट अप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को जैसे रेट बढ़ेगा ना वैसे उनको लाइफस्टाइल, वैसे उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें भी मायने रखती है। तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। वो चीजें आप देख लो कि भाई आजू बाजू कौन से लोकेशन में ज्यादा हो रहा है, और आपको समझो उसका नॉलेज नहीं है, देन यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ, आप सपोर्ट ले सकते हो प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट जैसे हम हैं, या हमारे जैसे भी कोई बंधु रहेंगे कि वो प्रोफेशनली काम करते हैं, उनको अच्छा एक्सपीरियंस है, वो आपको प्रॉपर वे में गाइड कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने अपने शहर में नहीं और कोई शहर में कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, तो ये प्रॉपर्टी હું मैनेज कई रीते કરી શકું? पहले रेरा जब नहीं था वो टाइम पे प्रॉपर्टी मैनेज करना बहुत बड़े इश्यूज होते थे, बट बिकॉज ऑफ रेरा अभी ट्रांसपेरेंसी आ गया है। एंड अगेन एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, सम प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट आप चूज करोगे तो वो आपका टोटल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जो है ना आपके बिहाफ में कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, अभी बहुत सारे नए नए अभी ऑप्शंस जनरेट हो रहे हैं, यानी ऐसा लगता है कि नहीं चलो बड़े सिटी में इन्वेस्ट करना है, यानी मुझे करोड़ों के ऊपर पैसा चाहिए, बराबर। बट अभी जस्ट पूना में अभी एक नया ट्रेंड अभी आना चालू हो गया है कि जिसमें आपके हाथ में 25-30 लाख भी रहेगा ना तो भी आप कमर्शियल में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एक नया लीजिंग का एक ऑप्शन आ गया है कि जिसमें आपको, जैसे बैंक में आप एफडी रखते हो ना, तो वैसे पैसा रखना है, यू विल गेट एश्योर्ड रेंटल ऑल्सो, एंड आपका प्रॉपर्टी का भी एप्रिसिएशन भी होता जाएगा। ये दोनों चीजें भी आपका हो सकता है विदाउट 0% रिस्क, विथ प्रॉपर सपोर्ट। तो ये जो आपने अश्योर्ड रेंटल कहा और प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन, ये कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे कोई लीजिंग प्रोसीजर में? यस, वेरी फंटास्टिक क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है ना पैसा मेरा कितना बढ़ेगा, बराबर। तो नॉर्मल देखेंगे तो रेसिडेंशियल में आप या कोई भी रहेगा तो एवरेज रियल एस्टेट में रेंटल यील्ड जो है ना वो रेंटल यील्ड 3 to 4% का एवरेज स्टैंडर्ड रहता है एक साल का। एक साल का, ओके। एंड एप्रिसिएशन जो रहता है वो एप्रिसिएशन अलग, मैं रेंटल यील्ड का बात कर रहा हूं। तो यहां पे आपको एश्योर्ड रेंटल यील्ड जो है ना एवरेज हम बात करेंगे तो 6% से ज्यादा मिल सकता है, सिर्फ रेंटल यील्ड। एंड एप्रिसिएशन का, यानी जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन का है वो हम बात करेंगे तो कोई भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि पुणे में भी मेट्रो स्टेशन का काम चालू है, रिंग रोड का काम चालू है, आईटी कंपनीज नए नए खुल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट वहां पे आप एप्रिसिएट जो है ना वो 12 से 15% ईयरली हो सकता है। कई जगह पे प्रीवियसली 2 साल में ही 30% का एप्रिसिएशन एक साल में हो गया है, यानी 2 साल में 60% का एप्रिसिएशन पुणे में ताथोड़े करके लोकेशन है, रावेत करके लोकेशन है, वो लोकेशन पे हुआ है। बट स्टैंडर्ड हम एग्जैगरेटेड नहीं बात करेंगे, एवरेज आउट भी बात करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन रहता है, इन्फ्लेशन ही हमारा अराउंड 8 से 9% रहता है, तो कंसेशन कॉस्ट 8 से 9% बढ़ने वाला ही है, एंड लैंड कॉस्ट जो है वो पर ईयर वो बढ़ता ही जाता है। तो एवरेज हम बात करेंगे तो रियल एस्टेट में आपको 10 से 15% का एप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म में मिल सकता है, एंड रेंटल यील्ड अलग मिल सकता है, यानी आपका दोनों फायदा है। વાવ, આ રેન્ટલ યીલ્ડ કોન્સેપ્ટ હું તમને સમજાવું। રેન્ટલ યીલ્ડમાં સરે જે 6-7% કીધું ને, એનો મતલબ 1 કરોડ રૂપિયાની પ્રોપર્ટી હોય તો એનું રેન્ટલ યીલ્ડ એટલે વાર્ષિક ભાડું 6-7% એટલે 6-7 લાખ રૂપિયા હોય, એટલે મહિનાનું ભાડું આપણને 50-55 હજાર રૂપિયા એક્સપેક્ટ કરી શકીએ। આ ભાડું થઈ ગયું, અને પ્રોપર્ટીનો જે ભાવમાં વધારો થાય છે એ અલગ। હવે સર છેલ્લો પ્રશ્ન અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન તમને પૂછવા માંગુ છું। કોઈ પણ નવું અગર રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટર છે કે જે પહેલી વખત ફ્રેશર છે, એમને તમે શું ટિપ્સ આપવા માંગો છો કે રિયલ એસ્ટેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા પહેલા કઈ કઈ બાબતોનું એમને ध्यान રાખવું જોઈએ? सबसे पहले जो नए इन्वेस्टर हैं उनको ध्यान में रखना है, विदाउट क्लैरिटी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपका जो रियल एस्टेट का, आप भले छोटा बड़ा भी हम बात करेंगे तो 25-50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ अमाउंट, ये बड़ा अमाउंट रहता है।
तो इसके लिए आपको विथ क्लैरिटी करोगे तो आपको कैसा हो, टेंशन फ्री रहोगे। सेकंड थिंग, कोई भी प्रोजेक्ट में या कोई भी लोकेशन पे इन्वेस्ट करोगे तो उसका मार्केट नॉलेज आपको होना इंपॉर्टेंट है। थर्ड, आपको ये देखना है कि हम जहां पे कर रहे हैं वहां पे रेरा अप्रूव्ड है क्या, क्योंकि रेरा ने बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली किया हुआ है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मार्केट ट्रेंड क्या चालू है। नहीं तो कई जगह ऐसा हो जाता है कि मार्केट ट्रेंड, यानी मैं एक लाइव एग्जांपल दूंगा। हमारा एक पूना में एक प्रोजेक्ट है जहां पे रेसिडेंशियल में 63,50,000 में एक ने फ्लैट लिया है, वही उसके नीचे शॉप है वो भी 63,50,000 में लिया हुआ है, बट शॉप का लोकेशन गलत था। बट उसने कैसे ये बोलते हैं ना कि चलो भाई मुझे मिल रहा है करके ले लिया, उसने डिसीजन गलत लिया। वो शॉप पे उसको अभी 20,000 भी भाड़ा नहीं मिल रहा है। बट वही रेसिडेंशियल पे अभी आप वाकड़ का हम बात करेंगे तो वहां पे 30,000 रेंटल उसको पर मंथ मिलना चालू हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में करना है किधर भी करो। जैसे शेयर में पैसा बढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं भी कि नया कोई भी बंदा आके इमीडिएट रिच हो जाएगा। विदाउट नॉलेज वो इन्वेस्ट करेगा तो डूब भी सकता है। तो सेम वे में आपको नॉलेज नहीं है तो यू नीड टू टेक अ सपोर्ट ऑफ सम एक्सपर्ट कि जो आपको प्रॉपर वे में गाइड कर सकता है, आपका पैसा सेव कर सकता है, उसका सपोर्ट लो। और वो आंख बंद करके मत लो, आप पूरा अंडरस्टैंड कर लो विद क्लैरिटी, उससे समझ लो कि भाई हम यहाँ पे कर रहे तो क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, बाकी सारी चीजें, रेरा में क्या स्टेटस है, एक्चुअल वहां पे बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें टेक्निकल लीगल टेक्निकल भी चीज रहती, चेक करने के बाद आप इन्वेस्ट करोगे तो आप सेफ, સિક્યોર એન્ડ એપ્રિશિએટેડ વેલ્યુમાં ઇન્વેસ્ટ કરો। થેન્ક યુ સો મચ સાગર સર। मतलब मैंने तो जितना प्रश्न થયા मैं सर ने पूछ ही लीधा है, आपने सारे प्रश्नों का हमें जवाब दिया, उसके लिए हम बहुत आभारी है। आज मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं जानने को मिली। સરે હિન્દીમાં જવાબ આપ્યા, પણ મને એટલી આશા છે કે તમે સમજી જ ગયા હશો સર શું કહેવા માંગે છે। જો કોઈ પણ પ્રશ્ન તમે સરને પૂછવા માંગો છો તો સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે નંબર ઉપર વોટ્સએપ કરજો, સર ફ્રી ઓફ કોસ્ટ કન્સલ્ટેશન આપશે। બીજો કોઈ પ્રશ્ન છે તો કમેન્ટમાં પૂછી લેજો, સર એનો પણ જવાબ આપશે। અને આ વિડીયોની માહિતીથી રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં તમને કંઈ નવું જાણવા મળ્યું હોય તો બસ આવી જ માહિતી માટે એક વાત કહું, જોતા રહેજો। આપણે ફરી મળીશું। ધન્યવાદ। થેન્ક યુ સો મચ સર। થેન્ક યુ વેરી મચ। થેન્ક યુ।